Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with chapter number 18, in which we are doing the physical features of India. In first lecture I have explained what we are going to study in this chapter, some landforms, some physical features of India. First is the northern mountain, second we will discuss northern plains, then great Indian desert, the peninsular plateau, and the coastal plains, and last is the island. And today's our topic is northern mountain. Fine. So today we will discuss what are the features of the northern plain. So it is your page number 151. Fine students, page number 151 from your book. So I am starting this chapter. The northern mountains from a series of the Gangetic mountain range. जो हम northern mountain है वो एक range है Gangetic mountain range की, originating from the Pamir Cone in Central Asia. देखिए यहाँ से start हो रहा है जो Pamir Cone है Central Asia में, यहाँ से इसकी range start हो रही है किसकी, इन mountains की. अब इसमें कौन कौन सी range है? There are three significant ranges that together from the northern mountain, जो northern mountains को क्या करती है, form करती है. So three range कौन कौन सी है? First range is Karakoram range, second is Ladakh range, and third is the Himalayas range. अब क्योंकि हम we are talking about the India, so we will discuss about the Himalayas. हमारे यहाँ जो रेंज है वो कौन सी है? हिमालयाज रेंज. एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. जो ओरिजिनिंग ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स है इज फ्रॉम द पमीर कोन इन द सेंट्रल एशिया, जिसे हमने थ्री रेंजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द कराकोरम रेंज, सेकेंड इज लद्दाख रेंज, एंड थर्ड इज हिमालयाज रेंज. नाउ नेक्स्ट इज all these three, the Himalayas are the highest and most prominent. इन तीनों ही रेंजेस में सबसे जो हाईएस्ट रेंज है वो किसकी है? हिमालयास की. The Himalayas, as you will recall, are young-fold mountain. किस में आता है ये? young-fold mountain में. ठीक है? It is the example of the young-fold mountain. They start from Kashmir in the north. अब हमने यहाँ पे देखिए मैप बनाया है आपके लिए. थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ये हमारे मैंने सिर्फ ऊपर का पोर्शन जो है आपका जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में है. ये जो सबसे पहले आप इसको समझिए. दिस डायरेक्शन इज द नॉर्थ, फाइन. दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नीचे साउथ. ठीक है. Now according to the direction of three Himalayas are highest and most prominent. They start from Kashmir in the north. अब ये हमारा यहाँ पे आ गया जम्मू एंड कश्मीर, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है हमारी इंडिया में ये रेंज. एंड नॉर्थ एंड विद द अरुणाचल प्रदेश. एंड कहाँ होती है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर जाके ये क्या हो रही है? एंड हो रही है. अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आएगा, यानी नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंड है इसका हिमालयास का ये पोर्शन, स्टार्टिंग टू एंड. कश्मीर से लेकर ये आपका यहाँ पर एंड हो रहा है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, यानी कि एक्सटेंड है इंडिया में. नेक्स्ट इज at the eastern end the Himalayas are the known as पूर्वांचल माउंटेन. अब जब वो ईस्ट तक जाता है, यानी ये माउंटेन नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ आ गए? अरुणाचल प्रदेश में. तो अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल माउंटेन. क्या नाम है? पूर्वांचल माउंटेन. they went the southwest to the fort. Now first यहाँ पे थ्री रखें कि the Patkai in the Naga hills in the north, the Jero Kasi and the Jenita hills in the center, and the Rusai hill in the south. ये कुछ hills हैं जो जिसके
इसके बारे में बताया गया है। नाउ अब हमारा जो मेन टॉपिक है द 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयास, कि हमारे इंडिया में जो 3 रेंजेस है हिमालयास की वो कौन कौन सी है। सो फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालयास, जिसे हम नाम देते हैं किसका, हिमालय। सेकेंड इज मिडिल हिमालयास, इट्स नोन एज द हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयास इज ऑल्सो नोन एज द शिवालिक। So these are the 3 parallel range of Himalayas which known in the different names. Great Himalayas is Himadri, Middle Himalayas is Himachal, and Outer Himalayas is Shivalik. Now we will discuss about one by one. First I am explaining the Great Himalayas, Himadri. Fine. The Himadri range is the highest and northernmost Himalayas range. सबसे northmost की है, यानी सबसे ऊपर की रेंज है हिमाद्री। And the average height of the 6000 मीटर above the sea level, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई है 6000 मीटर। सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है हमारे इंडिया की हिमाद्री, वो कहाँ तक इसकी हाइट है 6000। And due to the extreme height of the range is very difficult to cross except where are the gaps of passes such as the Karakoram passes, Shivki Law, Nathu Law and the Zoza Law। ये कुछ passes हैं रास्ते जो बहुत ही difficult है वहाँ तक पहुँचना। The कंचनजंगा, अब यहाँ पर एक दो चीज आई है, कंचनजंगा। अब ये क्या है, कंचनजंगा जो है ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की, है ना, इंडिया की। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट और द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया इज कंचनजंगा, जो कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर ये सिचुएटेड है, सिक्किम। Next is the highest Himalayas peak in India. The outer high peaks are the और भी कई सारी peaks हैं, high peaks हैं, नागा, प्रभात, नंदा देवी and the केवटी, कुछ highest peaks और भी हैं इस एरिया की हैं। Now next is the middle Himalayas। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिडिल हिमालयास, जो बीच का हिमालयास है जहाँ जम्मू कश्मीर। अब हम इस तरफ आ जाएंगे, यानी यहाँ से हम नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ तो आगे हिमालय, फिर यहाँ पर आ गया हमारा मिडिल हिमालयास। The heights of the Himachal range which lies in the south in the greater Himalayas varies between, अलग अलग रेंज है इसकी, 1500 to 3500 जो मीटर है इसकी हाइट है इस रेंज की। इट इज ऑफन कॉल्ड द लेसर हिमालय, जिसे क्या कहा जाता है, लेसर हिमालयास, है ना, मिडिल हिमालयास को। मैनी सीनेटिक हिल्स स्टेशन, कई सारे हिल स्टेशन है यहाँ पे, पालमगांव, गुलमर्ग, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आर फाउंड इन द मिडिल हिमालयास। Between the range and the outer Himalayas there are many beautiful longitudes, valleys and hills। कई सारे ब्यूटीफुल जो वैलीज हैं यहाँ पर पाई जाती है इस एरिया में। आप में से भी कई लोग जान गए होंगे किसी न किसी हिल स्टेशन पे। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा होता है। लोग स्पेशली यहाँ पर विजिट करने जाते हैं। सीनरीज, द कश्मीर वैली ड्रेन बाय द रिवर झेलम, कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली भी गए होंगे आप, एंड गंगा वैली, ये कुछ वैलीज हैं जो इस एरिया में पाई जाती है हिमाचल में। नाउ लास्ट इज द आउटर हिमालयास। व्हाट इज द आउटर हिमालयास? अब यहाँ पे एक टेबल है आपकी बुक में, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टॉपिक इज पीक, देन कंट्री एंड हाइट्स इन द मीटर। सबसे पहला दे रखा है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, नेपाल में, 8848 इसकी हाइट है। देन कंचनजंगा लाइज इन द इंडिया, इसकी हाइट है 8586। इसके बाद है जो भी बहुत सारी इसमें पीक दे रखी हैं, आपको सबसे हाईएस्ट और इंडिया की आपको पता होनी चाहिए, इसकी हाइट्स के साथ उनको डिस्क्राइब किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज द आउटर हिमालयास, जो सबसे नीचे का जो है शिवालिक रेंज जिसको कहते हैं। शिवालिक रेंज हैज एन एवरेज हाइट ऑफ द 1550। एवरेज में इसकी कमी होती है 1550 इसकी जो एवरेज जो हाइट्स है रेंज की। एंड मर्ज विद द मर्शी फुट हिल्स कॉल्ड द तराई। इन एरियाज को क्या कहते हैं, तराई। Since the mountain of the range are still under the formation, क्योंकि यहाँ पे
फॉर्मेशन होता रहता है इसका, माउंटेन्स का एक कंटिन्यूस एलिवेशन प्रोसेस चलता रहता है। इट्स रेंज इज द फ्रॉम टू द लैंडस्लाइड, तो यहाँ पर कई सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, जमीन का खिसकना, है ना। दिस माउंटेन बेल्ट इज इम्पोर्टेंट रीजन नॉट जस्ट फॉर द टूरिज्म बट ट्रेड बट ऑल्सो द फ्रूट प्रोडक्शन एंड एनिमल रेयरिंग। इस सारे एरिया में कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जैसे कि एनिमल रेयरिंग्स का, और फ्रूट्स जो है बहुत अच्छे ग्रो होते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये आपकी आ गई है टेबल जिसमें हाईएस्ट पीक दे रखा है किस कंट्री में है और उसकी कितनी हाइट है, ये आप एक बार स्टडी करेंगे फ्रॉम योर बुक। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म है इट इज़ द नॉर्थर्न प्लेन। अब नॉर्थर्न प्लेन में हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह की लैंड फर्टाइल होती है, ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसके बाद है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो हम ये दो टॉपिक है आपके नॉर्थर्न प्लेन एंड इंडियन जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। आई विल एक्सप्लेन दिस टू लैंडफॉर्म्स, टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर्स में आपको कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है माउंटेन रेंज के बारे में। ये इस तरह का मैप जो है आपकी बुक में भी है पेज नंबर 152 पर। इसको ध्यान से देखिए, इसमें हर कंट्रीज और बहुत अच्छी बाउंड्रीज से इसको एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में। आपको याद रखना है 3 रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। इनकी हाइट्स आपको पता होनी चाहिए और कौन से हिल स्टेशन कहाँ आते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्यों हम चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक डिटेल मैनर में आपकी बुक में दे रखी है। सो इट्स अबाउट योर लेक्चर्स, टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस topic with the northern plains on next class. So thank you.